آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں 14ویں انٹرنیشنل چیمبرز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی سستا ملک ہے، مہنگائی پر تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی تنقید ہو رہی ہے۔ مزید کہا ٹماٹر اور پیاز بیچ کر خوشحال نہیں ہوں گے، ایکسپورٹس بڑھانا ہوگی ورنہ IMF میں پھنسے رہیں گے۔ ہماری حکومت کو نااہل کہا جاتا ہے مگر ہم نے ملک کو بحرانوں سے بچایا۔ ملک میں مخصوص مافیا ہے جو قانون کے ماتحت نہیں آنا چاہتا، یہ جنگ میں اکیلے نہیں لڑ سکتا، عوام نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ابھی بھی پاکستان سستا ہے۔ آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے، مہنگائی لوگ تکلیف میں ہے مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہے لوگ مہنگائی سے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے۔ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جی بڑی نااہل حکومت تھی، تو اگر نااہل حکومت تھی تو کووڈ سے بھی بچا لیا، بزنسز کو بھی بچا لیا، بے روزگاری سے بھی بچا لیا۔ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی، وہ مشکل جنگ ہے۔ پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے، اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ اب سب نے لڑنی ہے جنگ۔ یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا معاملہ، وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف کھلم کھلا فراڈ کر کے بیرون ملک گئے جس میں شہباز شریف ملوث ہے۔ شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ طلبی کی درخواستیں دی جائیں گی۔ بہزاد سلیمی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی صورتحال زیر بحث آئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نیوز کانفرنس، شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ بولے عدالت سے استدعا کریں گے کہ شہباز شریف کو نااہل کیا جائے یا بیان حلفی پر عمل درآمد کرایا جائے۔ یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے۔ فواد چودھری نے بتایا ثانیہ مری کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے اموات ہوئیں۔ پنجاب حکومت نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، 7 روز میں رپورٹ آ جائے گی۔ یہ جو معاملہ تھا یہ پریونٹیبل تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ جو آفیشلز ہیں ان پر مبنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ وزیر اطلاعات نے وفاقی کابینہ کی جانب سے کورونا کی صورتحال پر بریفنگ کے بعد لاک ڈاؤن نہ کرنے کی تفصیلات بھی بتائیں۔ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی، لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو EVM فراہم کی جائیں گی۔ بہزاد سلیمی، نیوز 1 اسلام آباد۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ کا بل پیش کر دیا گیا۔ بل پیش کرنے کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ایوان سے خطاب میں کہا شوکت طرین نے 300 ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے اور 300 ارب روپے کا منی بجٹ لائے۔ مزید کہا 1700 ارب روپے کے ٹیکس عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں، کبھی آگ اور پانی اکٹھے نہیں چل سکتے، ملک کی بہتری کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ IMF کے سامنے ڈٹنے کا دعویٰ کرنے والے آج قرضہ مانگ رہے ہیں۔ عمران خان ہر بات سے مکر جاتے ہیں، یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں۔ شوکت طرین صاحب تشریف لائے اور انہوں نے 300 ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے اور اب 350 ارب روپے ٹیکس لگانے کا ایک اور نسخہ اس منی بجٹ میں لے آئے ہیں۔ یہ سارے ملا کر جناب اسپیکر 1700 ارب روپے کے ٹیکس بنتے ہیں۔ عمران نیازی IMF کے آگے ڈٹ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ میں I am just reminding him his own words۔ ہر بات جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے اوپر مکر جاتے ہیں۔ ایک ہی ایریا میں بہت اعلیٰ مہارت حاصل کی ہے، وہ یو ٹرنز۔
दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत डूब रही है और तिनके का सहारा ले रही है। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत का आखिरी कदम होगा। ये इन रिकॉर्ड्स है, वज़ीर आज़म को भी मालूम था। नवाज शरीफ बीमार थे, हुकूमत ने तमाम तसल्ली के बाद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। नवाज शरीफ का इलाज जारी है, इलाज होने में वक्त लगता है। अब वो डूब रहे हैं और तिनके जो है उनका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तिताम जो है, जो पर्दा गिरने वाला जो लम्हा है वो करीब आता जा रहा है, तो उनका ख्याल है कि इस तरीके से या इन इकदाम से उनकी कोई बचत हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि अदालती जो मामलात हैं उस पर मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म जो थे वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो बीमार रहे हैं। तमाम तसल्लियाँ करने के बाद जो है उनको बाहर भेजा गया कि भाई इनका इलाज जो है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे के मुताबिक ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर इंजाम नहीं दे सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन का कहना है कि आर्टिकल 62(1)F से मुतालिक दरख्वास्त तैयार कर ली है, जल्द दायर की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली, जबकि नैब की जानिब से दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। दौरान इंक्वायरी जरदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा वापसी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा, अब ऐसा नहीं लगता, ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। आवाम के हालात देखकर चाहता हूँ हुकूमत पहले दिन चली जाए। क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। जो हालात हैं अवाम के, इसमें इनसे कुछ नहीं हो सकता। वफाकी वजीर का सानह मरी पर बयान इंतहाई अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक वजीर ने सानह मरी से पहले मरी गाड़ियों के दाखिले पर ट्वीट किया और लिखा, हम तरक्की कर रहे हैं। हुकूमत सानहा मरी पर जिस बेहसी का मुजाहरा कर रही है सब जानते हैं। सानहा मरी के जिम्मेदार उस्मान बुज़दार और वफाकी काबीना है। इमरान खान को हम सिलेक्टेड कहते हैं और कहते रहेंगे। सानहा मरी पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार की लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा अहमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम को मायूसी से निकालने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, सानह मरी इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत ने सानह मरी का सारा मलबा अवाम पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब समेत सबको इस जुर्म का एतराफ़ करना चाहिए। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने सूबाई हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, बल्दियाती इदारों के काले कानून को दफन करना होगा। मजीद कहा, वरना इससे शहरी दफन हो जाएंगे। खुरमशेर जमान बोले, सिंध हुकूमत की करप्शन पर कई मज़ामीन छप सकते हैं। अब यहाँ के लोग वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। इस काले कानून को, इस काले निज़ाम को जिससे मकामी हुकूमतें ख़त्म होती हैं, उसको दफन करना होगा, वरना शहरी दफन हो जाएंगे। सूबे सिंध के हालात जो हैं हम सब जानते हैं कि वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, और पूरे सूबे को ऐसा लग रहा है कि मोहनजोदड़ो के अंदर ये तब्दील करना चाहते हैं। बेशुमार ऐसे मसाइल हैं। हम अगर इधर बैठ कर बात करना चाहें तो किताबों में किताबें लिखी जा सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नालायकी के ऊपर। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि आवाम को कुछ भी नहीं मिला, सिंध में बच्चों के पास कपड़े नहीं और हज़ारों स्कूल बंद पड़े हैं।
مان لیتے ہیں وفاقی حکومت زیادتی کر رہی ہے، لیکن آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے ان میں کتنے پیسے عوام پر خرچ کر رہے ہیں؟ میرے جو سندھ کے میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، نہ ان کو روٹی ملا، نہ ان کو کپڑا ملا، نہ ان کو مکان ملا. آپ سندھ میں جائیں تو بدن پہ کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے، بچوں کے. ابھی 11,000 اسکول صرف اسکول گوشت اسکول قرار دے دیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وفاق زیادتی کر رہا ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس پیسے آئے، تم نے ان پیسوں میں سے سندھ کے لوگوں کو حق کتنا دیا ہے؟ وڈیرہ شاہی کی مثال دیکھنی ہو تو شاہ رخ جتوئی کیس دیکھ لیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا سندھ حکومت پر طنز. میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی میں لسانی سیاست کی جا رہی ہے، یہاں وڈیرہ کلچر ہے. شاہ زیب قتل کیس وڈیرہ شاہی کی مثال ہے. وڈیرہ شاہی کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہو تو شاہ زیب جتوئی کیس دیکھ لیجئے، اور اس میں وڈیرہ اور ان کی اولادیں شاہ رخ جتوئی کے معاملات دیکھ لیجئے کہ کس طرح اس نے برسر عام قتل کیا، اس کو سزا ہوئی، پھر دیت کے معاملات طے پائے اور سپریم کورٹ کے سو موٹر کے نتیجے میں اس کی سزا عمر قید سنائی گئی اسے. لیکن کل یہ پتہ چلا کہ یہ وڈیرے جس نے ایک سندھی کا ہی قتل کیا، کسی اور کو نہیں مارا تھا، اس وڈیرے کو یہ مراحت حاصل ہے کہ ایک ریسٹ ہاؤس ٹائپ کا بنا کے اس کو ہسپتال کا ٹائٹل دے دیا گیا، اور کتنے مہینوں سے وہ عیاشی کے ساتھ عمر قید کا ایک قیدی، ایک قاتل جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا. دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو جرائم کیے ہیں اس شہر اور اس صوبے کے ساتھ، اس میں ہمیشہ ایم کیو ایم کا تعاون اسے حاصل رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یار کیا موسم ہے تو چائے پیو گے؟ ایسے موسم میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں پک کر لے یار. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اٹھا لو. آپ کے ہاتھ کی خاص چائے کیسے چھوڑ سکتے؟ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اسی لیے بنے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جیسے چائے کو سمجھے صرف ایوری ڈے. نیو ٹریسمے کیراٹن اسموتھ فار پروفیشنل کوالٹی اسموتھ ہیئر، جس میں ہے آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین جو دے 3 دن تک فریز کنٹرول. نیو ٹریسمے کیراٹن اسموتھ. میں مزہ آتا ہے ہر کے بعد جب صاف آتا ہے. مرچی کی بو کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی اے اسکوائر پلس سر لگتا ہے کہ سگنلز نہیں آ رہے. لاسٹ پیریڈ میں گیم ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو کھاؤ کیڈبری مورو کیربل نوگا چاکلیٹ کا مزیدار بوسٹ. مورو کھاؤ اور ریسیٹ ہو جاؤ. یہ علامات آئرن کی کمی کی ہو سکتی ہیں، انہیں کبھی نظر انداز نہ کریں. اپنے بچوں کو دیں نیسلے بنیاد جو آئرن کی ضرورت کو پورا کرنے اور ان کی قوت مدافعت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے. نیسلے بنیاد، بہتر زندگی کی مضبوط بنیاد. From Nestle. New Tresemme Keratin Smooth for professional quality smooth hair. جس میں ہے آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین جو دے 3 دن تک فریز کنٹرول. New Tresemme Keratin Smooth. یار کیا موسم ہے نہیں؟ ہاں ہے تو چائے پیو گے؟ ایسے موسم میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں پک کر لے یار. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اٹھا لو.
आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। चूंकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूं और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे ज़माने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपये थी। एम आई राइट? 1200 रुपये थी। 1200 उसी की बात कर रहा हूं, 1200 रुपये थी। आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपये पे है। 3700 रुपये पे जनाब स्पीकर ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ जनाब स्पीकर ਮੇਰੇ ਕੋਲ DAP ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है हमारे ज़माने में मियां नवाज शरीफ के ज़माने में DAP की कीमत 3500 रुपये थी। I'm sorry, 2400। मैं आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद ना कर सके। जनाब स्पीकर 2400 और आज DAP ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत उससे 3 गुना ज्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंट मैन हैं, वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडिल मैन हैं। तो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। इससे बड़ा स्पीकर और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ किसान की जो खाद है उसकी जो DAP है उसका यूरिया जो है वो आसमानों से बातें करें, उससे एक्सपेक्ट करें, तो करें कि वो पैदावार बढ़ाएगा और वो एक्सपोर्ट होगी। यहाँ स्पीकर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दर्दनाक हौलनाक सूरत हाल चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आम आदमी है, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुई। मैं जनाब स्पीकर ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि इन्होंने हमारी जो माशी कश्ती है वो तो डबो रहे हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी की जो कश्ती है उसको भी अल्लाह ना करे डबोना चाहते हैं। इन हालात में मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आपसे मेरी इल्तिजा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं जल्द अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल कॉलीग की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि ये सारे गरीब मारी के इक़दामात वापस लें, ये सारे जालिमाना इक़दामात वापस लें, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे काश्तकारों का सामान हो या बीज हो या खाद हो, चाहे अस्पतालों की दवाइयाँ हो या मशीनरी हो, ये सारे वापस लाएं। दूसरा बिल हम इंशाअल्लाह देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। यहाँ स्पीकर सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ, आपको वाक़या जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनने जा रहा था, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को $5 अरब की पैकेज ऑफर की। मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ।
वज़ीर आज़म ने 5 टेलीफोन कॉल्स भी आए, 5। हर बार उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान ने ये हरकत की है, ना करते तो शायद हम इसके ऊपर इस तरह का इकदाम ना उठाते। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये $5 अरब की आपकी पेशकश, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब सदर, लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम का मैं मुस्तकबिल तारीख नहीं कर सकता। मैं इसको नहीं लूंगा, मगर पाकिस्तान की इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान कायम दायम रहा। आज ये $1 अरब की खातर जिनके बारे में खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने गोया हुए कि वो खड़ा हो गया है इमरान नियाजी, वो तो आज घुटने टेक चुका है। मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, जो कौम भीख मांगती है और भीख की आदी हो जाती है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। हैंड आउट्स एंड एड एंड डोल आउट्स नेवर एवर दे हैव बीन एबल टू स्ट्रेंथन अ सोसाइटी ऑन इट्स फीट। ये कभी नहीं हुआ। पांव पे खड़ा होने के लिए आपको जरी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बगैर आप बातों से आप ताकतवर नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं चंद मिनट और लूंगा आपके। मैं जानता हूं कि आप आंखों में इशारे कर रहे हैं कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। जनाब स्पीकर, ये बचपन से आदत है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आवाम से पूछें, आम आदमी से पूछें कि महंगाई है कि नहीं। सिर्फ चंद हफ्ते पहले जनाब स्पीकर, KPK के गयूर और बहादुर अवाम ने जो जिल्लत अमेज शिकस्त इनको हुई वहां पे, उन्होंने बता दिया और कौम को बता दिया कि महंगाई है कि नहीं। जनाब स्पीकर, ये वही KPK है, खैबर पख्तूनख्वा, जहां से आपका ताल्लुक, और एक पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ये सूबा है, बेहतरीन, और वहां पर गयूर अवाम है। ये वही KPK है जिसके बारे में ये PTI, वहां पर इनको ना गरीब नजर आता था, ना इनको गुर्बत नजर आती थी, ना कच्चे घर नजर आते थे, ना कोई बीमार नजर आता था। अस्पताल और यूनिवर्सिटियां की उसकी रेल पेल थी। चंद हफ्ते पहले KPK में इनकी बदतरीन शिकस्त ने इनकी आंखें खोल दी होंगी, और अब इनको वहां पर गरीब भी नजर आता होगा और गुर्बत भी नजर आती होगी। और जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत भी अर्ज करना चाहता हूं। आप एक सियासी शख्स हैं, कदावर शख्स हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका। जब आपको, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं PTI की बात कर रहा हूं, मगर मुखातब मैं आपको हूं। जब आपको गरीब और गुर्बत नजर ना आए, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि फिर आवाम को PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं। जब शफाफ इलेक्शन होंगे, तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इनको आटे दाल का भाव बताएंगे, और बताएंगे कि गरीबमारी और जुल्म और सितम और ये महंगाई और ये बेरोजगारी के नतीजे में वो इनको इबरतनाक सबक सिखाएंगे। जनाब स्पीकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक मजदूर से पूछें, आप तो आम आदमी में फिरते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मजदूर से पूछें, उनके घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे उनके भूखे हैं। एक घराने में बूढ़े वालिदैन के लिए दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है। एक घराने में माँ बाप के पास बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जनाब स्पीकर, उनसे पूछें जिनके पास जिंदा रहने के लिए कोई वसीला नहीं है। और जनाब स्पीकर, वो सफेद पोश जो करोड़ों इस पाकिस्तान में, और सफेद पोश की तारीफ आप जानते हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो सफेद पोश, इनको क्या पता वो सफेद पोशों के साथ क्या बीत रही है कि उनकी सफेद पोशी की चादर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों छिन चुकी है।
जनाब स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जो नाम लेवा हो रियासत मदीना के, तो वहां पर एक यतीम, बेवा, सफेद पोश सब लुट-पुट जाएं। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह की हाकमियत में ये मुमकिन नहीं है। कुरान करीम इस बात की गवाही देता है। ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके अमल में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात कुछ करते हैं और अमल उसके उलट करते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाम वबाएं पूरे पाकिस्तान में अपने आगोश में ली हुई। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सनतकार जो इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज उनकी सनतों से कि चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। आज कारोबारी लोगों का कारोबार ठप हो चुका। आज एक मजदूर जब चौकों और चौराहों में जाते हैं, आप सुबह देखते होंगे, सुबह 6 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे फजर के बाद सारा दिन गुजार देते हैं और शाम को घर वापस आते हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिलती। वो कहां से अपना पेट पालेंगे, कहां से गरीब बेटे के लिए अपना इलाज का इंतजाम करेंगे, कहां माँ के लिए इस जाड़े में, सर्दी में कोई गर्म बनियान लेके आएंगे। यहाँ स्पीकर, ये हैं वो हालात। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने बात की ये किसानों की, ये किसान मारी जो इन्होंने की है पहले भी और अब इस मिनी बजट में, ये जनाब स्पीकर, ये है वो एक तवील दास्तान जो कि किसी भी क़यामत से कम नहीं है, जो गरीब अवाम को निगल रही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये बात मेरी नोट कर लें जनाब स्पीकर, कि वो दिन दूर नहीं जब गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए हुए अवाम का एक गजबनाक रेला वो निकलेगा और इस तारीख की सबसे नकम्मी, नाहल और करप्ट पीटीआई की हुकूमत को वो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। थैंक यू जी। मैं फिर आखिर में इन्होंने कभी हमारी बात को ना मानना तो दूर की बात है, उसके पर गौर करना भी कभी इन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि ये अपने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। फिर से आपको बराह रास्त चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और विफाकी वजीर असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। जनाब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैंने कहा जनाब कि जिस रफ्तार से आपकी मईशत प्रोवाइड कर सकता हूं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि असद उमर सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ी कश्ती है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग से बचाने की कोशिश करें। ये दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं कि मईशत को तबाह कर दिया गया। फिर उन्होंने जनाब बात की, जी सर बिल्कुल सुनाइए ऑडियो, हमारी जरूर सुनाइए, हम आपको बताएंगे। उसी ऑडियो पे खड़े हुए आज तक हम वो वाली ऑडियोज की भी बात नहीं करते जो आजकल हर 2 हफ्ते के बाद आती है। वैसे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, उसमें कुछ बातें हुई हैं उनका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन जरा इधर आ जाए सर। एक बड़ी जबरदस्त नसीहत की वजीर अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना चाहिए और साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाई, इनके बड़े भाई, मोहतरम भाई 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान के रहे। जरा मुझे ये बता सकते हैं कि उन 3 मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था ऑपोजिशन के साथ? अगर कोई एक किया तो हमें बता दें। अच्छा, बनाया था आपने, साइन कौन सा किया था ऑपोजिशन के साथ? लेकिन चले हम ये बोलते हैं कि इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन मुझे ये बताएं स्पीकर साहब कि हम इनके साथ जब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो हम इनसे सीखेंगे क्या कि किस तरीके से टीटी करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है, या किस तरह 15 और 20 हजार रुपए महीने के तनख्वाहदार मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया बरामद किया जाता है, या किस तरीके से पैनामा के पेपर्स के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम होता है। क्या ये इस तरीके से सर जी सर सुन लें, जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा रखा करें।
राणा साहब तशरीफ रखें, प्लीज जब तशरीफ बात करते हैं ना तशरीफ सुनने का रखें, जज्बा रखा करें। तशरीफ रखें, इस तरह नहीं होता। अच्छा जी प्लीज। फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अल्फाज के चुनाव की बात की। आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। सर स्पीकर साहब फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी शोर हो, जितना आप मर्जी इस तरह शोर ना हो, करें ना, इस तरह सच ना की करें। आवाज दबाई नहीं जाती। एक बोलने मिनट, दें इस तो तरह जो ना मर्जी करें, बोलना है। आपकी तफसीर अच्छा म्यां सर, साहब इसको बता दें, अब इसको आप बैठा आए, दें। म्यां साहब जब इसको ये बैठा बात दें, कर प्लीज, इसको रहे बैठा हैं। दें। आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज सर, प्लीज। स्पीकर साहब आप इनको छोड़ देना, इनको बोलने दे जो मर्जी बोलना है। अच्छा, हम इनकी आवाजों से दबने वाले नहीं है, ना इनकी बातों से घबराने वाले। ये इन्होंने बात की कि इमरान खान ने बोला किसी को चोर और किसी को डाकू बोला, और उससे जो है पाकिस्तान की सियासत खराब हो गई। सर, जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम पाकिस्तान, किसी को अगर वीडियो चाहिए वो भी दिखा देंगे। वो लोग जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन, उनके मरे हुए वालिदैन को कहते हैं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। ये गुफ्तगू ये किया करते थे। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं दोहरा भी नहीं सकता। वो आपने भी सुनी है, वो इन्होंने भी सुनी है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। जो चले गए सर, हिम्मत नहीं होती, सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, सच सुनने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही होता है, फिर जाना पड़ता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। वो हमें याद दिला रहे थे कि इलेक्शन से पहले हमने क्या कहा। क्या इनको याद है? अगर नहीं याद है तो उसकी भी वीडियो दिखा देते हैं। कहते हैं पेट फाड़ूंगा, खम्भों से लटकाऊंगा, आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। आखिरी जो मैं बात कर रहा था, आजकल ऑडियोज आती हैं, क्या कहा जाता है? स्पीकर साहब, ये तो ऑपोजिशन को हुकूमत को ऑपोजिशन वाले सख्त बातें बोलते हैं। चलें, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि सहाफियों के बारे में कभी आपने ऐसी गुफ्तगू सुनी है? और कोई छोटा मोटा लीडर नहीं, एक 30 साल 40 साल से सियासत करने वाला मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में से एक परवेज रशीद किससे बात कर रहे हैं? मरियम नवाज से बात कर रहे हैं। और वो कितने सीरियस है, वो कितने सीनियर है कि वो मरियम नवाज उनको अंकल कह रही हैं। अच्छी बात है, वो उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हैं। परवेज रशीद साहब कहते हैं ये जो सहाफी हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं। सर, ये किसी ने आज तक पाकिस्तान में सहाफियों के बारे में बात की ऐसी? सर, सुननी पड़ती है। जब आप बोलते हैं ना तो सुनने के लिए तैयार हो जाया करें। फिर उन्होंने दावा किया कि फैटअप के बिल के लिए हम मदद करने को तैयार थे। पहली बात तो सिर्फ याद दहानी के लिए, इनकी भी और कौम के लिए, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फैटअप ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डाला था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं। वो बेचारा हमाद अजहर उस वक्त से काम कर करके अच्छा भला नौजवान, उसके बाद आधे ग्रे हो गए। वो फैटअप ठीक करते करते ये जो खराबी पैदा करके गए थे। लेकिन स्पीकर साहब, आप तो हाउस के कस्टोडियन हैं, आपके पास तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हो रहा है। ये कहते हैं कि हमने फैटअप के ऊपर वोट डाला था। मैं फ्लोर पे चैलेंज कर रहा हूं इनको, फैटअप के बिल का वोट निकाल के देख ले, इन्होंने मुखालफत की थी। ये तो ये इनके अपने साथी इनके पास हैं नहीं, आपस में इनके दराड़ें पड़ी हुई हैं, वोट ये डलवा नहीं सकते, इसलिए शिकस्त फाश हुई थी उस दिन। अच्छा जी, फिर आ जाएं जनाब। इन्होंने कुछ दावे किए, कहते हैं जनाब के टैक्स हमने जितना जमा किया था वो आज तक नहीं जमा हुआ। टैक्स कितना जमा किया था? सर, रिकॉर्ड की बात है, अभी निकलवा के देख लेते हैं। इनका आखिरी साल जो था 3,800 अरब रुपए, 3,800 अरब रुपए टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया था। हमारा पिछला साल, कोविड का साल,
दुनिया की मईशतें लेटी हुई थी। हमने पिछले साल 4,700 अरब रुपए इकट्ठा किया और इस साल इंशाल्लाह 6,000 अरब से ज्यादा इकट्ठा करने जा रहे हैं। यानी इन्होंने जितना टैक्स इकट्ठा किया था उससे 60% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, इन्होंने दावा किया, एक तो खुदा की कसम मैं बोलता हूं कि मैंने पहले भी बोला है, ये मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ साजिश कर रहे हैं नून में। इनको तकरीर में जान के गलत अदाद शुमार बताए जाते हैं ताकि ये कुछ स्टेटमेंट दें और उसके बाद सारी कौम के सामने नजर आ जाए कि वो स्टेटमेंट जो है उसको झुटलाया गया। वो बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे की बात कर रहे हैं। सर, आखिरी साल मुस्लिम लीग नून का जो था उसमें एक साल में 450 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था, रिकॉर्ड की बात। जो पिछला साल हमारा गुजरा उसमें एक साल में 130 अरब रुपए सिर्फ इजाफा हुआ, यानी 1/3 से भी कम हो गया। ये इनकी परफॉर्मेंस थी, खुदा का वास्ता, जिसमें अपनी जिल्लत हो, अपनी बिस्ती हो, उस चीज को तो ना रेस किया करें। फिर आगे जनाब मईशत तबाह होगी। चले स्पीकर साहब इसके ऊपर बात करते हैं, मईशत तबाह हुई कि नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारी आखिरी साल में मईशत के सिर्फ एक साल इनका मईशत का 5% से ज्यादा इजाफा हुआ मईशत की रफ्तार में, 5.3% इनके आखिरी साल में हुआ। स्पीकर साहब, कोविड के साल के अंदर जैसे मैंने कहा जिस वक्त दुनिया में तमाम मईशतें लेटी हुई थी, उस साल पाकिस्तान की मईशत ने जो ज़िमनी अंदाजा लगाया गया, जो उस वक्त जो मार्च के महीने के अदाद शुमार पे था, तो 4% इजाफा हुआ हमारी मईशत में। आपको खुशी होगी कि जो उसके बाद आखिरी तिमाही आई उसमें हमारी बड़ी सनतों की रफ्तार जो है वो 12 से 13% थी। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने में जब हम आपको पिछली साल की फाइनल फिगर्स आपको देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पिछले साल की जो हमारी ग्रोथ थी इकोनॉमी की, वो 4% नहीं, वो 5% के करीब हुई। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इस साल जो है 4.8% हदफ है, लेकिन पहला जो 6 माह गुजरे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अब नजर आता है इंशाअल्लाह ताला ये 5% या उससे ज्यादा मईशत की ग्रोथ इस साल दोबारा होने वाली है। इन्होंने और आपको बताते हैं मईशत में क्या हो रहा वाला है, आप शायद पढ़ते नहीं है या शायद वहां चले जाते हैं, क्योंकि देखे ना खानदान जो है, भाई आपका लंदन में, आपके भाई का उधर समधी लंदन में, आपके इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वजीर असद उमर इजहार ख्याल कर रहे थे। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलारी है।